Hi everyone, I'm Dr. Sikha Garg. I'm MBBS MD and running my own lab, Zenik Healthcare Lab. So today we have with us Dr. Sachin Bindal. He's Associate Director Neurosurgery, Max Super Speciality Hospital, Mohali. So today we are going to discuss about backache and the myths related to the spine surgery. So welcome, sir. Uh, so what do you think are the main causes of the backache, and what is the duration in which a backache is supposed to be called chronic or needs further intervention? See, backache these days is very common. Earlier, backache used to be there only in older age group, beyond 45, 50, maybe beyond 60. These days, maybe more kind of sitting life or the quality of diet we have, or maybe the running lifestyle we are having, or sedentary lifestyle we are having. Backache has started coming very early in the age groups. Even we are seeing backache even in children of 14 to 15-year-old who are sitting and studying and preparing for their 11th, 12th exam. We see back pain in them also, and parents, they come to us asking for help, like the child is not able to sit with the back pain. And otherwise, middle age group back pain is also very common. And this is the age group pattern which we have seen. There is a change from older age group to younger age group and the middle age group. And second thing is, what are the common causes of back pain? Commonly, back pain is supposed to be the degenerative spine. Like as we grow old, the spine starts getting degenerated. स्पाइन घिसने लगती है, सादी भाषा में अगर बोले तो स्पाइन घिसने लगती है, और बैक पेन धीरे धीरे पेशेंट्स में जैसे घुटने पेन करते हैं वैसे बैक में भी पेन आने लग जाती है. दैट इज अ नॉर्मल कोर्स विच इज सपोज टू हैपन टू एवरीवन who don't take adequate care of their back. So, but the causes which is causing back pain in younger age group, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा. वन इज विदाउट गाइडेंस. आजकल यंगर जनरेशन दूसरे मूवीज़ को देखेंगे या रील्स को देखेंगे तो दे स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, डंबल उठाए, एंड दे स्टार्ट डूइंग जिम एट होम विदाउट एनी ट्रेनर. एंड कितना वेट उठाना है दे डोंट अंडरस्टैंड. चिल्ड्रन, दे आर वेरी, आई मीन दे आर नॉट मेच्योर. 14-15-year-old child, a male child, has a tendency to do dumbling, and then that dumbbell he will pick up heavy weights. Maybe he is going to gym over there also. वो एक बचपने की कह लो, वो अपने आप को तो बड़ा समझता है, बट माइंड इज़ नॉट मेच्योर. वो जल्दी तगड़ा होना चाहता है एंड ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करता है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करता है. मसल्स का अट्रैक्शन होता है कि मैं जल्दी मसल्स बिल्डअप करूँ, एंड देन दे lift heavy weights and then they get disc prolapse. So younger generation, either because of prolonged sitting hours, when they are studying for long hours, sitting for long hours on tables, or maybe we've seen children, they are like many a times studying on their beds. They don't sit on table and chair. Poor posture. Poor posture. That is very common. Poor posture is very common in terms of sitting, in terms of watching TV, in terms of using phone also. Yes. Everybody is having this way. So all these definitely, and specifically you mentioned gym. Even in gyms I have seen people are doing gymming in a very, very wrong way. They're just, they do not know when to bend, how to bend, and if they're picking up a lot of weight, they're not following a proper instruction. So random injuries एकदम से जाके, those are very common. And ऐसा होता है कि जब आपको वेट उठाना है, you are supposed to leave your breath and lift. So अगर breath अंदर होल्ड करके आप उठाते हैं तो there is a possibility कि प्रेशर ज़्यादा होगा एब्डोमेन का, and there is a chances of disc prolapse. And second thing is like simple thing. If I bend straight like this, the possibility of disc prolapse is less. But if I twist and bend, then the spine is rotated a bit, and then you bend, and there is a chances of capsular tear, which leads to the disc prolapse. So one other thing is that, and one thing is wrong posture, as we discussed. घर पे गलत बेड के ऊपर गलत तरीके से बैठना, टेबल चेयर्स पे पूरा ऐसे स्लाइड होके बैठना, और whatever way. And second thing is driving rash. Younger people, 17-18-year-old, they get
Bike, newly they acquire licenses 18 years पे and then they start driving bike. Traumatic things. हाँ, स्पीड yes. ब्रेकर्स पे जर्क लगेगा या सडनली कोई सामने आ गया, जोर से ब्रेक लगाना पड़ा, या फिर घर में कोई चीज़ इधर की उधर सरकाने की बात आई, लाइक कोई सिलेंडर उठा के अंदर से बाहर रखना है, लेडीज़ को बहुत बार Yes, लाइक very, सोफा very सरकाना common. है या कोई बेड सरकाना है, घर में हेल्प नहीं होती, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो खुद ही सब जोर लगाना पड़ता है। सो बेड सरका के उसके पीछे कोई चीज़ गिर गई या सफाई करनी है या कोई अलमीरा सरकानी है, सिलेंडर उठा के लगाना है, दीज These are थिंग्स common causes. Yes. बच्चे को उठा के कई बार हम अंदर बाहर करते I हैं। am about to say this only हाँ। कि जब छोटे बच्चे थोड़े certain age पे when you are picking them up, randomly pick कर रहे हो तो there is a pressure on नहीं, them. बच्चे पहले भी उठाते थे लोग, बट अभी क्या हो गया है कि सीडेंटरी लाइफ होने की वजह से हमारी बैक्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अपने बच्चे को अगर 10-12 किलो से ज़्यादा का है उसको उठाएं तो हमें बैक पेन होने की संभावना डेफिनेटली इज देयर। सो वो पार्ट भी ध्यान रखना होगा कि हमें केयरफुल रहना कि हमें रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा, वॉट एवर वी डू, वी हैव टू डू एंड मेंटेन अ डिसेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बैक, सो दैट छोटा मोटा काम तो अब ये करना ही पड़ेगा, सिलेंडर उठा के लगाना होगा या सोफा थोड़ा बहुत हिलाना पड़ेगा या ये करना ही पड़ेगा, बट थिंग इज कि बैक में इतनी स्ट्रेंथ जरूर हो कि हम उसको Deal कर सकें. Yes. Any effect of obesity on backache and slip discs? obesity directly doesn't affect, obesity causes earlier degeneration. Agar somebody is fat, then instead of getting back pain at 60, the person will start getting back pain at 35-40. Obese person, they have a wrong posturing of sitting, and then they will have a weight on the spine throughout whenever they are standing or sitting. तो उनकी बैक के ऊपर हमेशा एक स्ट्रेन रहता है जिससे वो जल्दी डिजनरेट, जल्दी स्पाइन खराब होती है, घुटने जल्दी खराब होते हैं। तो ओबेसिटी डेफिनेटली इज वन ऑफ द कॉज। Not directly but indirectly. Yes. Indirectly. So what would be the first approach if somebody is having backache? See, first approach, anybody having back pain, don't ignore it. Go to rest. Take rest as far as possible. लेट कर रेस्ट, lying down rest is always the best. कभी भी किसी को भी बैक पेन हो गया, सबसे पहले वो 5-7 दिन टोटल रेस्ट पे चला जाए, ज़रूरी काम करे, बाकी टाइम वो लेट के रहे, और थोड़े से काम जो ज़रूरी है वो कर ले, और बाकी जो काम पोस्टपोन हो सकते हैं 4-5-7 दिन के लिए पोस्टपोन कर दे, रेस्ट करे, हॉट फर्मेंटेशन ले, कोई फिजियोथेरेपिस्ट से बातचीत अगर हो सके वो घर आके कर सके, आपने नहीं जाना, आप घर पे बुला के अगर पॉसिबल है तो घर पे आके वो आपको कोई मसाजर या कोई आपको शॉर्ट वेव डायथर्मी या कोई इंफ्रारेड मसाज या जो भी आपको वो, But massages through expert only. Yes. Otherwise massages are very unhealthy. Yes, It's yes. not done by a proper technician. बिल्कुल So सही। you should be very careful when it comes to massages. So this is the first aid, and then first aid के beyond if pain still exists. हाँ, if it doesn't improve, then what can be done? What should be done? See, if pain does continues to stay, आपने रेस्ट कर लिया, आपने छोटा मोटा कोई दवाई लेके खा लिया और पेन फिर भी परसिस्ट कर रहा है, डोंट इग्नोर इट, क्योंकि फिर वो ज़्यादा खराब होने के बाद फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। सो आपको स्पाइन सर्जन को मिलना चाहिए। स्पाइन जो है न्यूरो सर्जन्स देखते हैं, मैं देखता हूँ, मैं पिछले 20 साल से स्पाइन का काम कर रहा हूँ, और स्पाइन के अंदर आप हमें जब आके मिलते हो तो हम आपको एग्जामिन करते हैं, कोई स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट हो गया या कोई बेंडिंग टेस्ट हो गया या आपसे हिस्ट्री लेके हो गया, और उसके बाद अगर उसमें कोई डाउट हुआ तो एक्सरे करा के देख लेते हैं, एक्सरे में कोई डाउट हुआ तो एमआरआई करा के देख लेते हैं, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि हुआ क्या। तो छोटी मोटी डिस्क है, रेस्ट और दवाइयों से कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं हम देते हैं, एंड पेशेंट इम्प्रूव्स। अगर कोई मॉडरेट साइज की डिस्क है, आजकल बिना सर्जरी के कुछ छोटे मोटे इंजेक्शंस वगैरह स्पाइन में लगा के, है ना, और नर्व रूट ब्लॉक्स वगैरह लगा के, और कुछ एडवांस्ड मेडिसिन, अभी लेटेस्ट मेडिसिन भी बहुत सारी आ गई जो, So these are all latest treatments now. हाँ, एंड देन अगर डिस्क का साइज बड़ा है तो उसको अर्ली अगर हम टैकल करें तो सर्जरी करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं। Okay. So patient initially अगर महीना 2 महीने हो गया and they know कि कोई इंजरी हुई थी and something traumatic happened, या they know कि it could be a possible slip disc, severe pain है, then तो immediate करना ही करना है, and then लोगों को बहुत डर है from specifically from the spine surgeries, तो उस डर के लिए what can be any comment on that कि how to go about it, why are they scared because of the long term complications, or like they are bedridden, or probably certain activities they think cannot be done after surgery.
So anything about that? सी बैक की सर्जरी के लिए हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है पेशेंट को समझाना कि सर्जरी कराओ, क्योंकि बड़ा कॉमन मिथ है कि स्पाइन सर्जरी करा के तो खराब हो जाएंगे। सी स्पाइन सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट जो है एक अच्छे एक्सपर्ट के हाथ में, एक अच्छे हॉस्पिटल सेटअप में 2 से 3% ही होता है, जिसके अंदर पेशेंट जो है जितना है उससे डाउन जाए। 97 to 98% सक्सेस रेट इसके अंदर एक एक्सपर्ट हाथ के अंदर ज़रूर होता है, और एक अच्छे सेटअप पे, एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छा सर्जन जिसके पास एक अच्छा माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप हो, जिसके पास एक अच्छी कॉटरी हो, एक अच्छा सीआम हो, है ना, मतलब बेसिक गैजेट्स जो है, इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, सब कुछ होना चाहिए। सर्जन कितना भी अच्छा हो, अगर उसके पास अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं है तो वो उसके अंदर फिल्टर कर सकता है। बट अगर एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा डॉक्टर आप करते हैं तो उसके अंदर सर्जिकल सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई, फेलियर एंड डिटोरिएशन चांसेस आर वेरी लेस। सो ये मिथ जो है कि सर्जरी स्पाइन करा के खराब हो जाएंगे, इट्स एक्चुअली अ मिथ, वो सच नहीं है। तो सर्जरी से डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। कितनी ड्यूरेशन है फॉर रिकवरी एंड कंप्लीट रिकवरी और पार्शियल रिकवरी? लाइक कोई भी अगर आपने स्पाइन सर्जरी करी तो पेशेंट कितनी देर में है कि दे कैन वॉक और दे कैन डू देयर बेसिक एक्टिविटीज, एंड कुछ एक्टिविटीज जो कभी भी नहीं कर सकते इफ एनी, तो काइंडली उसके बारे में बताइए। देखिए, जो मैंने अभी कहा कि एडवांस्ड सर्जरीज हैं, लाइक अब मैं जैसे मैक्स हॉस्पिटल की बात करूं, और भी हमारे जैसे और भी हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े हैं, उनके पास अच्छे माइक्रोस्कोप्स होते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, वी आर यूजिंग द हाई एंड माइक्रोस्कोप पेंटेरो जो कार्ल ज़ाइस का है, और उसके अंदर मैग्निफिकेशन इतना अच्छा है। देन वी हैव एंडोस्कोपिक सेट, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का कार्ल स्टोर्स, हाँ, कार्ल स्टोर्स का हमारे पास सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम्स हैं इनके अंदर क्वालिटी ऑफ इमेज व्हाट वी गेट व्हाइल ऑपरेटिंग इट्स वेरी वेरी गुड एंड मैग्नीफाइड, एंड उसके साथ चांसेस ऑफ इंजरी टू नर्व्स इज़ वेरी लेस। तो उसके अंदर हम लोग बहुत छोटे छोटे इंसिजन्स में से सर्जरी करते हैं। इमीडिएट पोस्ट ऑप पेशेंट को अगले दिन ही हम चला पाते हैं अगर सिंगल लेवल डिस्क है। दिस इज रियली वेरी अमेजिंग एंड पीपल दे फील रियली सरप्राइज्ड। हम अगले दिन बोलते हैं चलो जी, अच्छा डॉक्टर साहब चलना है। स्पाइन सर्जरी पे यू डू नॉट इवन थिंक अबाउट दैट वे। हाँ, तो कॉमन मिथ क्या, हर बंदा ये सोचेगा कि एक बार स्पाइन सर्जरी होगी आई विल बी एट बेड ओनली फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड, एंड देन वो प्रोलॉन्ग्ड चीजों के आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी जो कि एज सच नॉट अ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, बट इफ यू आर लाइंग ऑन अ बेड फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। तो हर बंदे को एक प्रिजम्पशन है कि स्पाइन सर्जरी हुई है तो मैं एटलीस्ट 10-15 दिन, महीना तो बेड पे रहूंगा। सो दिस इज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू इन दैट वे कि आप नेक्स्ट डे चला रहे हो। हाँ, जो सिंगल लेवल डिस्क है और जो एक्यूट डिस्क है उसी समय सर्जरी करा लो, आपको कॉम्प्लिकेशन रेट बिल्कुल कम हो जाता है, नाम मात्र रह जाता है। स्पाइन सर्जरी में जो सबसे ज़्यादा टेंशन्स होती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। स्पाइन में अगर इन्फेक्शन हो गई वो पेशेंट को बिस्तर पे लगा सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही कॉमन कॉज होता है। एंड व्हाट वी हैव सीन इज कि इन गुड हॉस्पिटल्स, गुड सेटअप्स, क्लीन ओटीज, इन्फेक्शन रेट इज वेरी वेरी लेस, है ना। से जैसे अब आप हमारे हॉस्पिटल में हैं, आप आके वहाँ पे चेक करते हो, कोई स्वैब्स लेना या उनको इंस्ट्रक्शन ओटी वालों को देते हो, तो इट मेक्स यस, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट इज वेरी वेरी लो when we are using all those new equipment because intervention भी उतनी कम है उसमें, उसमें incision कम है, and time of surgery is also reduced. Time of surgery is so all these things are definitely adding to that. तो patient care is at the best possible इस time पे। और बाकी एक और चीज़ है जो बड़ी important है, I'll tell you. One is कि patient if they come early then is the thing, yes. Success rate is really very good. जब पेशेंट अपनी स्पाइन खराब कर लेता है, बहुत समय तक उल्टे सीधे ट्रीटमेंट कराना या इलाज कराना ही नहीं, मतलब कोई मालिशें कराते रहो, कोई झटके लगवाते रहो, उसके बाद उसकी स्पाइन एक डिटोरिएशन स्टेज पे चली जाती है, डिजेनरेटिव स्टेज पे चली जाती है। उसके बाद फिर जो सर्जरी होती है उसमें नर्व्स ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती हैं या नर्व्स पतली हो गई होती हैं, उसको रिकवरी के अंदर काफ़ी समय लग जाता है। तो ये जो डर है ना पेशेंट का स्पाइन की सर्जरी ना कराने का, वो उनको एक्चुअली खराब होने के लिए और आगे लेके जाता है कि पेशेंट likelihood of becoming या having a poor outcome of spine surgery is because of their own ignorance, not because of the spine surgery per se. Ignorance plus you already mentioned the fear. ये fear के साथ साथ ये जो देसी क्वैकरी है
कि रैंडम जगह से मसाज करा ली, वो झटके मार दिए, या सो कॉल्ड कायरोप्रैक्टर्स जो एक्चुअली क्वालिफाइड कुछ नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके पास जा रहे हो. सो अगर आपके पास बेस्ट पॉसिबल जो उस टाइम पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, इमीडिएट अटेंशन ऑर्थोपेडिशियंस हो गए इमीडिएट वाले, दे कैन रेफर यू टू द न्यूरोसर्जन. और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है न्यूरोसर्जन की, दैट शुड बी द फर्स्ट अप्रोच, नॉट द लास्ट वन और द लाइक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. इट शुड नॉट बी दैट वे, क्योंकि व्हेन यू आर अप्रोचिंग सर्टेन थिंग्स आप उसको खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. आई थिंक दैट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम. सबको लगता है ये देसी चीजें करा लो, वो लिनी स्प्रे करी जाओ, है ना, छोटी मोटी मसाजेस, और वो उल्टा सीधा करके जस्ट कॉम्प्लिकेट्स इट. एंड ऑल्सो उससे ड्यूरेशन भी बढ़ गया, तो रिकवरी टाइम अगेन आपने खुद ही अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर लिया. दैट डज हैपन. और आपने एक सवाल पूछा कि बाद में क्या क्या नहीं कर सकते, या लोगों को डर है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम 6 महीने के लिए मैक्सिमम बोलते हैं कि आपने वेट उतना ही उठाना जितना आप बाजू से उठा सको, कमर पे नहीं उठाना पड़े. सो 5-7 किलो का वेट तो हम 15-20 दिन के बाद ही अलाउ कर देते हैं उठाने के लिए. कोई छोटा सूटकेस उठाना, कोई फ्रूट्स उठा के या सब्जी उठा के लेके जानी. बट यस, सिलेंडर हट सरकाना या बेड सरकाना या कोई हैवी काम करना, वो हम 6 महीने के बाद अलाउ कर देते हैं. हमारे सब पेशेंट सब काम रूटीन में करने लग जाते हैं. बेसिकली डेली एक्टिविटीज तो इमीडिएटली काइंड ऑफ रिज्यूम हो गई है. हाँ, मतलब 15 दिनों के बाद स्टिचेस कटने के बाद वी ऑलवेज अलाउ पेशेंट्स टू रोम अराउंड. सो लाइफ जो मॉर्बिडिटी है या आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट नहीं हो रही. सो बेसिकली इनफैक्ट जो आपका डिजीज था वो चला गया, तो पेन चली गई, जो सबसे पहले आप आ रहे हो उस चीज से वो चला गया, तो आपकी लाइफ इज एक्चुअली गेटिंग बेटर. एंड बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट गुड टेक्निक्स, जो एक इंटरवेंशन के बाद या सर्जरी के बाद का टाइम है, दैट इज ऑल्सो प्रिटी ईजी, है ना. 2-3 दिन का इज यू कैन से कि मेजर ज्यादा है, बट लाइक आप कह रहे हो 10-15 दिनों में आपकी बेसिक डेली एक्टिविटीज कैन बी रिज्यूम. सो आफ्टर दैट लाइक जिम हो गया या स्विमिंग हो गया या कोई भी और एक्सरसाइज, वॉक, ये वो सब चीजें कब कर सकते हैं पेशेंट? वो नॉर्मली स्विमिंग वगैरह, जिमिंग वगैरह हम 6 मंथ्स के बाद सबको अलाउ कर देते हैं. एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइफ की ज़रूरत नहीं होती. यस, बहुत हैवी वेट्स उठाना, आपकी बाजुओं की ताकत से बियॉन्ड अगर वेट उठाएंगे तो नॉर्मल बंदे को भी डिस्क प्रोलैप्स वगैरह हो सकता है. तो फिर जिसकी स्पाइन की सर्जरी हुई है तो उसको भी सेम रिस्क होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि स्पाइन की सर्जरी कराने के बाद आप वो काम नहीं कर सकते जो आप बिना सर्जरी कराए कर सकते थे. सो वो कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ ये नहीं है. और दूसरा जो मैंने पहले बताया कि अर्ली सर्जरी के अंदर आपकी रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छी होती है. अगर आप अपनी स्पाइन को खराब करते चले जाते हो, नर्व्स वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, तो उतना ही टाइम आपको रिकवरी में 3 महीने 4 महीने लगते हैं. बट यूजुअली हमने देखा 6 महीने तक जितना भी खराब स्पाइन हो, चाहे स्क्रू रॉड भी लगाने पड़े, चाहे कितनी भी मेजर स्पाइन सर्जरी करने पड़े, 6 महीने के अंदर यूजुअली पेशेंट्स दे रियली कम एंड थैंक अस कि डॉक्टर साहब जो है हम लोग एक्चुअली बेकार में डर रहे थे. और रादर मेरे तो जितने भी पेशेंट्स हैं वो पेशेंट टू पेशेंट ही लेके आते हैं. वो आसपास में लोगों को पता चलता है कि इनकी सर्जरी हुई और वो बिल्कुल ठीक है, दे आर सरप्राइज्ड एंड देन दे कम एंड आस्क मी, डॉक्टर साहब आपने उनकी सर्जरी की थी. ये फोबिया बहुत ज्यादा है कि स्पाइन सर्जरी सो डेंजरस, क्या क्या हो जाएगा, रादर देन कि वो बेटर कर देगी. पीपल हैव दैट यू नो फोबिया कि वो उल्टा पता नहीं क्या हो जाएगा, डैमेज ज्यादा हो जाएगी. सो आई हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू अ बिट ऑफ कॉस्ट थिंग. आई नो यू कैन नॉट कोट इट पर्टिकुलरली, बट एक जर्नलाइज्ड लोगों को ये भी होता है कि इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, एक्सट्रीमली कॉस्टली. सो एक काइंड ऑफ अफोर्डेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन है. सो एनी कमेंट्स ऑन दैट? सी, स्पाइन सर्जरी बहुत अलग अलग सेंटर पे छोटे बड़े के हिसाब से वेरिंग रेट्स पे होती है. 70-80 हज़ार से शुरू होके इट गोज अप टू 10-20 lakhs ऑल्सो. बट जो कॉमनली स्पाइन की सर्जरी जो एक सिंगल लेवल डिस्क है, यूजली 2 लाख के आसपास सिमट जाती है. और क्योंकि हॉस्पिटल स्टे सिर्फ 2 या 3 दिन का ही होता है, अगर स्टे लंबा हो जाता है तो खर्चा में गो बियॉन्ड 2.5 लाख तक जा सकता है. हाँ, बट यूजुअली 2 लाख के आसपास खत्म हो जाती है एक अच्छे हॉस्पिटल में. मतलब ऐसा नहीं कि भी मैक्स हॉस्पिटल बहुत महंगा है, वहाँ पे भी हम रूटीन में सर्जरी करते हैं. 2 लाख के अंदर हम. एंड मेजरली इंश्योरेंसेस अगर हैं तो दे आर ऑल कवर्ड. हाँ, वो कैशलेस रहते हैं. कैशलेस फैसिलिटीज भी हैं. यस यस, सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द गुड एडवांटेजेस. एंड पीपल कैन इजीली कम टू यू, है ना. सो कैन यू शेयर योर नंबर्स और एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जहाँ पे वो डायरेक्टली आपसे बात कर सके, और दे कैन टॉक टू अस ऑल्सो, वी कैन रेफर देम टू यू. बट आप काइंडली अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेयर यू कैन बी अवेलेबल आप प्लीज बताइए. I am available in Max Hospital Mohali every day
My phone number you can note down. It's 7986408010. So you can contact us in routine working hours from 10 to 5 p.m. on phone call, or otherwise you can send a WhatsApp message to us. We'll give you time to speak to us, and then you can come and meet us at Max Hospital, Mohali, and we will examine you and guide you कि किस तरह से है. मिलके देखिए, आपको हम बता देंगे, उसके बाद आप सोचिए कि क्या है, और हम आपको सारा समझा भी देंगे कि क्या आउटकम रह सकता है और किस तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन आपको चाहिए होगा, कि छोटा बड़ा, और क्या हम उसके अंदर बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं. बिल्कुल. आप सर से भी मिल सकते हैं, या आप मुझे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं. फ़ोन नंबर्स आर अवेलेबल. इट वुड बी शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, ठीक है, जितने भी तरह का एनीथिंग रिलेटेड टू बैक पेन और सर्जरी और स्पाइन सर्जरी, so you can feel free to ask us. We are available. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much.